أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فقرہ رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کے تعلیمات سے آج ہم انشاءاللہ شب قدر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں اپنے شب قدر کی رات کی فضیلت ہمیں کیسے ملی، کیا ملی، کس نسبت سے ملی اور کس کے ذکر کرنے سے ہمیں جو ہے یہ رات ملی، وہ بھی ہم نے جانا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے ہم انشاءاللہ شب قدر کی حقیقت یعنی کہ رات، فضیلت والی رات، یہ رات میں جو ہے یہ رات میں اللہ پاک نے جو ہے قرآن نازل فرمایا، یعنی کہ ہم آج انشاءاللہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی کہ اے حبیب جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس، کیونکہ اس رات کو ملائکہ اترتے ہیں، یعنی کہ زمین پر جو ہے ملائکہ اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر جو ہے وہ اترتے ہیں، اور سلامتی والی رات ہے یہ، اور یہ کب تک ہے؟ یعنی کہ کب تک؟ فجر تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی کہ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری رمضان کی آخری دہر میں جو ہے شب کو تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ، یعنی کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر بندہ جس نے بھی شب قدر کو پا لیا، یعنی کہ شب قدر کو پا لیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کو پا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر بندہ اس رات کو پا لیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا ہے کہ آخری دہر، رمضان کے آخری دہر میں جو ہے شب قدر کو تلاش کرو، اور یہ شب قدر ایسی چیز ہے، یہ بنا ایمان کے جو ہے یہ قبول نہیں ہوگی، یعنی کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے، وہ بندے کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اگلے پچھلے گناہوں کو جو ہے ایک معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس رات کو جو ہے قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوئی، یعنی کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور یہ کہاں نازل ہوئی؟ یعنی کہ یہ کہاں نازل ہوئی؟ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوئی، یعنی کہ رمضان میں نازل ہوئی، اور یہ وقتاً جو ہے 23 ایئرس لگے اللہ کا کلام، یعنی کہ اللہ کی مرضی جو ہے دھیرے دھیرے نازل ہوئی، اور رات، یعنی کہ یہ رات شب قدر کی رات میں اور یہ مہینے رمضان میں جو ہے یہ قرآن نازل ہوئی۔ یعنی قرآن کہاں نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، یعنی کہ رمضان کا مہینہ اتنا افضل ہے جس میں قرآن نازل ہوئی، شب قدر بھی جو ہے وہ رات جو ہے یہ افضل رات ہے، یعنی کہ نازل کہاں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ یعنی کہ آپ کا مرتبہ کیسا ہوگا؟ آپ کا مرتبہ جس مہینے میں آپ تشریف لائے وہ مہینہ رمضان سے افضل ہے، یعنی کہ وہ رات شب قدر سے افضل ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے اس کی فضیلت نزول قرآن سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کتنا عظمت والا ہے، کتنا برکت والا ہے، کتنا شان والا ہے۔ اب بات کیا ہے؟ اب ہم دیکھیے جو مہینے میں قرآن نازل ہوئی وہ مہینے کا ہم احترام کرتے ہیں، اور جو مہینے میں یعنی کہ جو رات پہ جو قرآن نازل ہوئی ہے وہ رات کا جو ہے ہم جو ہے احترام کرتے، مگر جس کا احترام کرتے، یعنی کہ جس کا احترام کرنا ہے، یعنی کہ صاحب قرآن آیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آیا، اب جس رات میں قرآن نازل ہوئی اس کا تو ہم احترام کر رہے ہیں، مگر ہم صاحب قرآن یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے مطلب کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ کی بدعت ہے، مگر الحمدللہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مطلب کہ ہمیں اللہ پاک نے یہ توفیق عطا کی، اور اگر قرآن کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ اگر نازل کرتا تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی کہ اب دیکھیے پہاڑ کیا ہے؟ مخلوق، طاقتور مخلوق ہے، یعنی کہ جب اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اگر میں کلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کو اگر پہاڑ پہ پیش کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی کہ طاقتور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو جب زمین جو ہے ہلنے لگی تھی، یعنی کہ لرزہ
कीड़ा पैदा हो रहा था उसमें। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, पहाड़ को जो है कीले की तरह जो है उसे बैलेंस करने के लिए जो पहाड़ बनाए। तो अब पहाड़ क्या है, ताकतवर मखलूक है, और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अगर मैं पहाड़ पे अगर मैं इसे नाज़िल करता तो रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो क्या बात क्या है? बात ये है कि अब अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुबारक पर जो है एक ये कलाम को पेश किया। तो अब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुबारक की शान कैसी है देखिए, इतनी अज़मत वाली है। तो यहाँ पे बात क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि लोग कहते हैं ना अभी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम भी देखिए, हमसे भी हम यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे जो है किसी के लिए भी नहीं आए, या तो मेरे लिए नहीं आए या किसी और के लिए नहीं। यहाँ पे जो आए किसके लिए आए? अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए आए। तो मतलब बात ये है कि जो मोहब्बत होती है वो सब जिससे भी मिलती है, वो जो जो मोहब्बत हमें मिलती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। यानी कि लोग कहते हैं ना कि हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, यानी नहीं, हम डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला देने वाला है, मगर पहुँचाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कि वो जलाल को सँभालने के लिए जमाल होना ज़रूरी है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना ज़रूरी है। बिना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो हम देखिए असल इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यानी कि अब हर अमल, यानी कि अल्लाह ताला के पास जो अमल जो कबूल होगा बिना ईमान के कबूल नहीं होगा। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह ताला पर भी ईमान लाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना है। और बंदा जब ईमान और एहतिसाब के साथ जब बंदा जब टिक जाता है, तो बंदा जो है रोज़े के मकसद को भी पूरा कर लेता है। और ये जो शब अल्लाह ताला ने ये रातें जो अता की, यानी कि आखिरी शब को जब तलाश करने के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, अगर बंदा ईमान और एहतिसाब के साथ इसे पा लेता है तो उसके पिछले गुनाहों को बख्श दिया जाता है। यानी कि ईमान इम्पोर्टेंट है, ईमान लाना है अल्लाह ताला पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जब बंदा इस पर लाएगा, इस पर टिकेगा, तो ही उसकी जो है इबादतें कबूल होगी। तो हमें चाहिए कि ईमान सीखना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला जो है, ये अल्लाह ताला जो है ये जो भी इबादत हमारी, जो भी अमल है, वो अल्लाह ताला बिना ईमान के कबूल नहीं करेंगे। देखिए अल्लाह ताला, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, जिसके पास भी राय बराबर का ईमान होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो ईमान सीखना हमें ज़रूरी है। ईमान के बगैर कौन-सा भी अमल अल्लाह ताला के बारगाह में कबूल नहीं होगा। चाहे हम कितनी भी रातें इबादत कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, कितने भी नमाज़ें पढ़ ले, रोज़े रख, बेशक हमें जो है फ़र्ज़ काम हमें करना है, मगर बिना ईमान के अल्लाह ताला के पास कोई कबूल नहीं हुई। तो ईमान सीखना ज़रूरी है, और ईमान आने का ज़रिया क्या है? कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस शरीफ में भी हमने क्या देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जो भी बंदा जो ईमान और एहतिसाब के साथ इस रात को पा लेता है, उसके पिछले गुनाह, यानी कि पिछले गुनाह जो है अल्लाह पाक जो है बख्श देते हैं। तो ईमान और एहतिसाब, यानी कि ईमान सीखना ज़रूरी है। अब इस रात को पाने के लिए ईमान सीखना ज़रूरी है। और देखिए अब ये महीने में जो है कुरान नाज़िल हुआ, और हमने पिछले बयान में भी हमने देखा कि ये रात हमें कैसे मिली, किस निस्बत से मिली, और ये निस्बत यानी कि हमारे सदक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो है हमें जो है ये रात मिली। सदक़ा जो है सहाबा से जो है हमें ये रात मिली। तो हम क्या है, हम फ्री में हम जो है उम्मत मोहम्मदिया में गए, हम ये सब जो भी चीज़ें मिले फ्री में मिले, और हर चीज़ हमें फ्री में मिल रही है। यानी कि आप देखिए हमें बैठे-बैठे जो है अल्लाह ताला का करम हो रहा है कि हम बैठे-बैठे जो है ईमान सीख रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब फ्री में मिल रहे हैं। बस हमें जो है ईमान सीखते हुए हमें अमल करना है। बिना ईमान के अमल अल्लाह ताला के बारगाह में जो है कौन-सा भी अमल कबूल है। तो ईमान सीखना ज़रूरी है। अब ये महीना, ये रात जो है कुरान नुज़ूल का महीना है। कुरान मजीद के तकाज़े होते हैं। अगर हम ईमान ला रहे हैं यानी कुरान मजीद पे, तो 4 तकाज़े हमें पूरा करना ज़रूरी है। अब कुरान के 4 तकाज़े, वो तकाज़े क्या है? एक तो क्या है, तिलावत करना, और दूसरा क्या है, समझना, फिर तीसरा क्या है, अमल करना उस पर, चौथा क्या है, उसकी तबलीग करना। अब लेकिन फ़ी ज़माना हमने क्या किया, 2 चीज़ों पे जो है हम अमल कर रहे हैं, यानी कि तिलावत कर रहे हैं, यानी कि हम ज़ेर ज़बर की दुरुस्तगी में तो है, हम तिलावत कर रहे हैं, कैसा पढ़ना है वो सब हम कर रहे हैं, मगर जो चीज़ बीच की जो चीज़ है, समझना फिर उस पर अमल करना, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं, और तबलीग ज़्यादा हो रही है, यानी कि कसरत से हो रही है। अब जो चीज़ जिसमें खिल्लत है वो क्या है, जिसमें जो है खिल्लत है वो चीज़ क्या है, बंदा समझ रहा नहीं और अमल नहीं कर रहा। ये क्यों है? क्योंकि बंदा ईमान ही नहीं लाया, यानी कि ईमान सीखना ज़रूरी है। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है इस आयत में कि ये खैर उम्मत हो, यानी कि तुम जो है खैर उम्मत हो, यानी कि ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, यानी कि तुम चुन ली गई सो उम्मत हो, तमाम उम्मतों में जो है तुम चुन ली गई सो उम्मत हो। ये नेकियों की दावत देती है और बुराइयों से रोकती है, यानी कि हम तबलीग कर रहे हैं, निकल रहे हैं, मगर बुराई से रोकते हैं। मगर हमने क्या देखा, कंप्लीट आयत नहीं देखी हम। कंप्लीट आयत क्या है, ईमान लाते हैं अल्लाह पर, यानी कि ईमान क्या है,
अब ईमान क्या है? ईमान क्या है? अल ईमान हुवल यकीन, यानी कि अल्लाह ताला पर हमें यकीन करना है। ये यकीन के लिए हमें इल्म ला इलाहा सीखना ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया? इस रात को ईमान और एहतिसाब के साथ जो बंदा पा लेता है, उसको अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देते हैं। यानी कि आज की रात ईमान और एहतिसाब अगर हम ईमान और एहतिसाब के साथ अगर हम सो भी जाते हैं, यानी कि हम ईमान और एहतिसाब के साथ हम सो भी जाते हैं, यानी कि तरावी पढ़कर, इबादत कर कर सहर तक अगर हम सो भी जाते हैं, तो इस रात को हम पाने वाले बन जाते हैं। मगर अगर ईमान नहीं है, एहतिसाब नहीं है रात में, तो कुरान कितना भी पढ़ लो, नमाज़ें कितनी भी पढ़ लो, रात पूरी जग लो, सुबह तक जग लो, ईमान और एहतिसाब नहीं है क़ल्ब में, तो बेकार है। तमाम इबादत बेकार है। हम रमज़ान से स्टार्ट हुए जब से हम पढ़ रहे, यानी कि हम पढ़ रहे, सुन रहे, नमाज़ें पढ़ रहे, तरावी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर ईमान एहतिसाब नहीं है तो बेकार है। ईमान सीखना ज़रूरी है। ईमान और एहतिसाब के बगैर कौन-सा भी अमल अल्लाह ताला के पास कबूल नहीं है। यानी कि रोज़े का मकसद भी ईमान और एहतिसाब होने का है, और तरावी पढ़ने का भी मकसद ईमान और एहतिसाब है। यानी कि रात का भी जो मकसद है, ईमान और एहतिसाब के साथ बंदा अगर इबादत कर लेगा, तो अल्लाह ताला के पास कबूल हो गया। कौन-सा भी अमल रहने दो, रोज़ा, ज़कात, नमाज़, हज, हर अमल अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करना है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कर रहा है? ताला जो है यहाँ पे थोड़े लोग की नफ़ी बता रहा है, कर बता रहा है। तो हो सकता है हम भी इसमें आ जाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए। और कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है ईमान के ताल्लुक से? और कुछ लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, किस पर? अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर। अब अल्लाह ताला क्या फरमाए? वो हरगिज़ ईमान वाले नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला काफ़िर मुशरिकीन को नहीं बोल रहा, मगर जो दो दावा करते कि हम ईमान लाए, यानी कि वो धोखा दे रहे हैं, अल्लाह मतलब वो ऐसा दिख रहा है कि धोखा दे रहे हैं, मगर वो हकीकत में धोखा जिसे दे रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे। आज हम देख रहे हैं ना, कई जमातें निकल रही है, क्या 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 आप बोल रहे हैं, मतलब अमल में लगा दिए, पर ईमान क्या है वो बोले तो नहीं। मगर ईमान असल चीज है, ईमान के बगैर कौन सा भी अमल अल्लाह ताला के बारगाह में कबूल नहीं है। तो ईमान क्या है? हमने हदीस शरीफ में भी देखा कि अल ईमान हुवल यकीन, ईमान यकीन का नाम है। किस चीज का यकीन होना? देखिए, अफजल ईमान जो है, इस अफ़ज़ल ईमान की जो है 70 शाखें हैं ईमान के, मगर अफ़ज़ल ईमान क्या है? अल्लाह हमारे साथ है। ये क्या है? आला दर्जा है, आला दर्जा ईमान का। अब अदना दर्जा क्या है ईमान का? रास्ते से जो है तकलीफ दे चीज़ को जो है हटा देना। अब हकीकती ईमान लाना है हमें। देखिए कि क्या है? अल्लाह हमारे साथ है। कहीं भी हो अल्लाह हमारे साथ है, हमारे दिल में जो है तस्दीक आना है। अब ईमान वाला कौन है? अब देखिए ईमान वाले कौन है? अल्लाह वाले होते हैं। जो चीज़ को जो रखते हैं ना, वो वाले होते हैं। यानी कि जैसे कि गोश्त की दुकान को गए तो हमें गोश्त वहाँ मिलता है। उसी तरह से अल्लाह ताला को पाने के लिए हमें अल्लाह वालों के पास जाना पड़ता है। वो कौन होते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? हमारी जो शिर्क, जो हम जो बिद्दत, ये जो चीज़ें जो जिसमें हम धोखे में पड़े, वो हमारे जो है, वो हमारी दुरुस्ती करके हमारे दिल को जो है पाक कर कर जो है हमारे दिल में जो है कलीमे की तस्दीक कराते। यानी कि ये क्या है? अल ईमान हुवल यकीन, यानी कि हमें दिल में ये तस्दीक रहना कि अल्लाह हमारे साथ है। अब देखिए हम कौन-सा भी अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला के पास, अगर ईमान नहीं है तो बेकार है। अब देखिए ईमान सीखना ज़रूरी है, और अल्लाह ताला कई जगह पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला जो है ईमान वाले से बोले मुताकिब होकर फरमाता है कि ए ईमान वालों रोज़ा रखो, ए ईमान वालों नमाज़ कायम करो, ए ईमान वालों ईमान वालों हज करो, और ईमान के साथ ही ताल्लुक है। मतलब ईमान क्या है? अल्लाह कैसा साथ है, ये पहचानने के लिए अल्लाह वालों के पास जाना पड़ता। वो वारिस होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब देखिए कोई कुव्वत नहीं रह सकता अल्लाह के सिवा। अल्लाह अगर साथ रहे तो हमें कुव्वत देता। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारे हाथ में जो है मोबाइल है, हम क्या करते हैं उसे एक टेबल पे रख देते हैं, ठीक है? अब वो फ़ोन हटकर अब फ़ोन खुद ब खुद हट सकता है? नहीं हट सकता। अब फ़ोन को हमारे पास हम हाथ में लिए तो क्या होता? हाँ, उसको हटाना पड़ता, और हम फ़ोन को हमारे पास पकड़े तो वो हमारे साथ हो जाता। उसी तरह से हमें भी जो है अल्लाह ताला के साथ हो जाना चाहिए। अब देखिए कलीमे में देखिए 2 किस्म की नफ़ी होती है। अब देखिए 2 कलीमे में जो नफ़ी जो बता रहे हैं अल्लाह ताला, जो नफ़ी हमें करना है वो क्या है? ला नफ़ीउल जिन्स, यानी कि कोई मखलूक हाज़त रवा नहीं है, अल्लाह ही हाज़त रवा है। कोई क़ुव्वत, कोई क़ुदरत किसी की नहीं है, अल्लाह ताला ही दिया तो ही है। यानी कि ये हमें दिल में तस्दीक करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होना ज़रूरी है। ईमान सीखना ज़रूरी है। ईमान आने का ज़रिया सिर्फ़ एक ही चीज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें इल्म ला इलाहा सीखना ज़रूरी है। जब बंदे के दिल में ये तस्दीक होता है, तो बंदा जो है ईमान वाला बन जाता है। जब बंदे के दिल में जब ईमान आ जाता है, तो बंदा क्या करता है? जो भी अमल करता है अल्लाह ताला के लिए करता है। आप देखिए
हम देखिए हम क्या करते हैं, हम परेशान होते हैं। हम क्या परेशान होते हैं, घर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सुबह से शाम तक हम जो है परेशान 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 रहते हैं। यानी कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, हमारी ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही। ये हम क्या कर रहे हैं, अब ये परेशानी क्यों आ रही? हम जो है हम अल्लाह ताला को अपने साथ पा रहे ही नहीं। यानी कि हम ईमान हमारे दिल में हम तस्दीक ही नहीं करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अगर तुमको नमक की कनकरी भी होना है तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला से माँगो। यानी कि अगर हम देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे शौहर यानी कि शौहर है, कोई चीज़ की हमें जो है ज़रूरत है, तो हम शौहर को बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए आप शौहर को बोलते हैं, हम क्या किसी और को जाके बोलते हैं क्या? अगर नहीं लेकर आए तो हम क्या करते हैं? उनसे नाराज़ हो जाते हैं। मतलब कि अब और बोलते हैं कि हम नाराज़ होकर बताते हैं कि अगर तुम नहीं लेके आए तो कौन लेके आते? यानी कि आप देखिए अब हम शौहर की ज़िंदगी में कब आए? 18 साल, 25 साल मतलब एक वक़्तन पे आए। तो ये अल्लाह तो हमको पैदा करा, अल्लाह से माँगना है हमें। यानी कि शौहर कैसा बोल रहे हैं, वो चीज़ें हमें पता है, मगर ईमान क्या है? अल्लाह से माँगना हमें, गिड़गिड़ाना। अब कहीं जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ईमान होना ज़रूरी है। ईमान आने के लिए दिल में यकीन पैदा करना ज़रूरी है। यानी कि जब इस बंदे के दिल में जब यकीन पैदा होगा, तो बंदा जो है अल्लाह ताला से माँगेगा, अल्लाह ताला से जो है गिड़गिड़ाएगा। तो क्या है, हमें ईमान सीखना ज़रूरी है। और देखिए कुरान को किसको असर कर मतलब कुरान किसे असर करती है? देखिए कुरान तो एक चीज़ है कि कुरान के बारे में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि हुदल लिल मुत्तक़ीन, यानी कि हिदायत है मुत्तक़ी के लिए। अब कुरान देखिए हम रमज़ान के मौके पे जो है सब शुरू कर दिए कुरान पढ़ना। अब कुरान जो है हिदायत है, किसके लिए हिदायत है? हर किसी के लिए कुरान हिदायत नहीं है। अब देखिए कोई लोग हिदायत पाते हैं, इससे कई लोग जो है गुमराह भी हो जाते हैं। अब हर एक चीज़ का जो है एक लेवल होता है। अगर हम किसी को कहे, यानी कि किसी को पकाने ही नहीं आता, तो हम उसे कहें कि बिरयानी पकाए, तो बिरयानी पका सकते हैं? नहीं पका सकते। उसी तरह से अगर हम देखिए अब एमबीबीएस अगर से हमें कुछ एक डिग्री हासिल करना है, यानी कि एमबीबीएस करना है, तो हम क्या करते हैं? तो हमारे लिए जो है स्टेप ज़रूरी है। यानी कि हमें जो है एक सर्टेन हमें जो है वो स्टेप्स फॉलो करे, बाद में जो है हम एमबीबीएस की जो है हमें सीट मिलती है, फिर हमें ये जो है इसमें एडमिशन मिलता है। यानी कि अब अल्लाह ताला कुरान नाज़िल करे, और हर चीज़ के लिए दुनिया में क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि एडमिशन के लिए क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। उसी तरह से अल्लाह ताला कुरान नाज़िल करे, इसे हासिल करने के लिए हमें इसमें हिदायत पाने के लिए, हासिल करने के लिए तक़वे की क्वालिफ़िकेशन है। यानी कि हमें स्टेप्स है, यानी कि यहाँ पे भी ये तक़वा क्या है? तक़वे वाला कौन है? मुत्तक़ी, यानी कि हुदल लिल मुत्तक़ीन, यानी मुत्तक़ी के लिए हिदायत है। तो हम देखें क्या हम तो बंदा जब ईमान वाला बनेगा, तो बंदा जो है मुत्तकी बनेगा, डरने वाला बनेगा और परहेज़गार बनेगा। अब डरना मतलब कि अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरना, अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों से परहेज़ करना। तो ये क्या है? कुरान क्या है? कुरान भी जो है मुत्तकी के लिए हिदायत है। तो हमें ईमान सीखना ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए ईमान सीखना ज़रूरी है। हर अमल के लिए ईमान सीखना ज़रूरी है। ईमान सीखेंगे ही तो ये हमारे नमाज़ें कबूल होगी, रोज़े कबूल होगी, हम कुरान जो पढ़ेंगे वो भी कबूल होंगे। अब देखिए कुरान को किसको असर कर देती है, मतलब कि हम कुछ वाक़ियात देखते हैं। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है अबू जहल का बेटे थे आप, यानी कि दुश्मन रसूल जो था, यानी कि अबू जहल सबसे बड़ा दुश्मन था। उसके पेट में जो पैदा हुई सहाबी रसूल हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फ़तह मक्के के बाद जो है आप ईमान लाए, यानी कि ईमान कबूल करें आप, यानी कि ईमान कबूल करें। अब जब आप कुरान पढ़ते थे, तो आप रोते हुए जो है निकल जाते थे, कहते थे ये मेरे रब का कलाम है। यानी कि ये अरबी जानते थे पहले, यानी कि जब ईमान नहीं लाने से पहले आप अरबी जानते थे, आपके सामने जब कुरान भी बताई जाती थी, फिर भी जो है आपको समझ नहीं आता था। जब आप फ़तह मक्के के बाद जब आप ईमान जब लेकर आए, फिर जब आपको पता चला, यानी कि जब आपको जो है कुरान के बारे में पता चला, और जब आप कुरान पढ़ते थे, तो आप जो है रोते हुए निकल जाते थे और कहते थे कि ये मेरे रब का कलाम है। मतलब देखिए, मतलब कि जब तक ईमान नहीं आएगा, तो हम कुरान से हिदायत नहीं पा सके, और कुरान को हम समझ नहीं सकेंगे। और कुरान पढ़ना भी है, तो हमें देखिए एक तो 4 तकाज़े हमने देखा, यानी कि हमें समझना भी है, उस पे अमल करना है, फिर तब्लीग के लिए आगे बढ़ना है। तो ये क्या है? ईमान के बगैर हमारा अमल कौन-सा भी अल्लाह ताला के पास कबूल हो। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान को रोते हुए पढ़ना चाहिए, आजिज़ी के साथ पढ़ना चाहिए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी कुरान पढ़ते थे, आपकी तिलावत इतनी अच्छे अंदाज़ के साथ होती थी, आजिज़ी के साथ होती थी। तो पढ़ते हुए जब अल्लाह ताला का आप कलाम पढ़ते थे, मक्के के जो मुशरिकीन औरत थे, जो भी बूढ़े लोग थे, जो भी बच्चे थे, सब घर के सामने जो है जमा हो जाते थे। यानी कि ये अंदाज़ था आपका, यानी
कि हम जो है हम कैसा पढ़ रहे हैं, देखिए हम कुरान यानी कि हम ज़ेर ज़बर की दुरुस्तगी में लगे हुए हैं। हम जो है हम जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उस पे गौर व फ़िक्र ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि उसकी गौर व फ़िक्र करना है, उस पे जो है इसको समझना है और उसे जो है हमें जो है अमल करना है, फिर हमें जो है उसको जो है तमाम लोगों तक हमें पहुँचाना है। तो हमें चाहिए कि कुरान जो पढ़ रहे हैं हम उसे भी जो है ईमान के साथ पढ़ना है कि जब ये ईमान सीखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सीखेंगे तो हम कुरान को समझ सकेंगे। अब देखिए, अब हम देखिए कुरान कहाँ रहती है, यानी कि देखिए कुरान कहाँ रखते हैं हम, या तो मोबाइल में रखते हैं, या तो ताबदान में रखते हैं, या तो आप किसी के जहेज़ में जो है कुरान है तो उसे गिलाफ पिना के जो है एक ऊपर उठा के रख देते। यानी कि हम देखिए कुरान कहाँ नाज़िल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुबारक में नाज़िल हुई। अब कुरान रखने की जगह क्या है? क़ल्ब। हमारे पास कुरान क्या है? ज़बान पे ही रहता, दिल में नहीं उतरता। ये क्यों? क्योंकि हमने कलीमे को समझा ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक ही नहीं की है। तो हम ये सीखना है, ये सीखेंगे, समझेंगे तो हम अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे और अमल कर सकेंगे। तो ये हकीकत है। मगर हम हकीकत में क्या कर रहे हैं? हम ज़बान से पढ़कर हम समझ रहे हैं कि हमने इसका हक अदा कर दिया और हम जो है अब जो चीज़ें हमें जो बताई गई है वो चीज़ों पे लग गए। यानी कि हमें जो असल चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है सहाबा को फरमाते थे कि तुम ईमान की तस्दीक किया करो। यानी कि ईमान लाने के बाद में भी तस्दीक करने के लिए कहते थे। यानी कि अपने ईमान को तस्दीक करते रहो। देखिए हमें अमल करना है, अमल देखिए नमाज़ें पढ़ना है, रोज़े रखना है, हर इबादत करना है, हर चीज़ करना है, मगर ईमान की तस्दीक करते हुए करना है। यानी कि अल्लाह ताला की उलूहियतपन को देखना, अल्लाह ताला के हाज़िर रवीपन को देखना, हर चीज़ देखना और जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं देखना, डरना और परहेज़ करना, जो मना की हुई चीज़ों से डरना है, परहेज़ करना है। ये सब चीज़ें कब आएगी? बंदा जब ये अमल जो करेगा, जो इबादतें जो करेगा, वो सब चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ईमान है। ईमान सीखना ज़रूरी है। ईमान सीखने के लिए कलीमा सीखना ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होना दिल में ज़रूरी है। ये क़ल्ब में जब उतरेगा तो हम जो है ईमान वाले बनेंगे। जब ईमान वाले बनेंगे तो हम जो है अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे और उसे अमल कर सकेंगे। तो हमें सीखना ज़रूरी है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम फ़ी ज़माना देखिए कुरान एक तो चीज़ है कि कुरान जो है रमज़ान में खोलते हैं हम, पढ़ लेते हैं, फिर हमने छोड़ 1 महीने के बाद में हम छोड़ देते हैं। या तो हम क्या करते हैं, कुरान जब परेशान होते हैं जब निकालते हैं, या कभी मतलब किसी के घर में जो इंतकाल हो गया तो जो है कुरान निकाल कर पढ़ते। मतलब ये चीज़ क्या है, मतलब निकालते फिर रख देते हैं। यानी कि मतलब निकाल कर हमें पढ़ना है, ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये पढ़कर हमें समझना है, इसका अमल करना है। इसलिए हम ईमान सीखना है, ईमान सीखेंगे तो हम अल्लाह ताला ने जो हमें अमानत दी, जैसे कुरान दी, उसे भी हम उसका हक अदा कर सकेंगे। अब कुरान देखिए, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का भी जो है बड़ा एक ऐसा वाक़या है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके लिए, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके लिए दुआ करते थे। यानी कि आप सहाबा मुरीद नहीं थे, आप जो है मुराद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के लिए दुआ फरमाई। अब वो दुआ जो है कबूल भी हो गई। यानी कि वाक़या हमने इसलिए पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि आपका वाक़या कि आपकी बहन, यानी कि आप जब जो है नौज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मतलब तलवार लेकर निकले थे आप। तो जब आप निकले थे तो एक सहाबा से आपकी मुलाकात हुई। तो एक सहाबा ने कहा कि जाओ तुम्हारे घर में तो देखो पहले। यानी कि जब आप आपके घर में गए तो आपकी बहन जो है कुरान पढ़ रही थी, यानी कि कुरान की तिलावत कर रही थी। जब आप कुरान की तिलावत कर रही थी तो आप जो है घर दरवाज़ा खटखटाकर जब आपने अंदर गया और कहा कि बहन से कहा, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, आपने कहा कि तुम क्या पढ़ रही थी? मेरे आने से पहले तुम क्या पढ़ रही थी? तो फिर आपने कहा कि मैं कुरान पढ़ रही थी। जब आपसे सुने तो आपने क्या किया? उन्हें बहुत मारा। तो फिर आपकी बहन ने क्या किया? आपकी बहन ने कहा कि ए ए मतलब आपने फरमाया कि ए उमर, तुम्हारी ताकत जो है मेरे जिस्म पे तो चल सकती है, मेरे मेरे दिल में नहीं चल सकती। यानी कि मैंने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करी, यानी कि ईमान। अब हम देखें, हम कितनी भी परेशानी आ जाए, कितने भी वो चीज़ें आए, तो हम ईमान को छोड़ दे के हम जो है उन लोगों की पैरवी करने लग जाते हैं। यानी कि जो काम हमारे पास आता है उसकी पैरवी करेंगे। यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुतालिक भी, मतलब कि उसके ऑपोज़िट भी रहा तो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि ये क्यों है? क्योंकि हमारे दिल में ईमान ही नहीं है। अब देखिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की बहन देखिए कैसी ईमान वाले, कैसी बात, कैसे लफ्ज़ है आपके। यानी कि आपने क्या कहा कि नहीं, तुम्हारा ज़ोर जो है मेरे जिस्म पे तो चल सकता है मगर मेरे दिल पे नहीं चल सकता है। तो फिर आपने फरमाया, यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने सोचा कि मेरी बहन जो है कभी मेरे
सामने जो है मुँह नहीं खोलती थी, आज जो है आप इतनी ऐसी ऐसा बोले, यानी कि आपके देखिए ईमान की ताकत देखिए। हम देखें, हम कुछ भी परेशान है कि तो परेशान हो जाते। अल्लाह ताला मतलब हमारे साथ ही चाहिए कि कैसा मतलब हम आप देखिए आपकी बहन कैसी ईमान वाली थी। फिर आपने कहा कि तुम पढ़ो, तुम क्या पढ़ रही थी? तो फिर आपने कहा कि ये कुरान, यानी कि कुरान पढ़ने से पहले जो है तुम्हें गुस्ल करना है, यानी कि ये जो है पाक लोग ही इसे छू सकते हैं। यानी कि देखिए अदब भी कैसे है अदब, जब ईमान आ जाता तो अदब भी आ जाता। तो देखिए फिर आपने क्या किया, फिर जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है आपने जो है गुस्ल किया, फिर आप जब वापस आए तो आपकी बहन ने जब जो है सूरह तहा की जो है आयतें पढ़ी, जब आयतें पढ़ी तो आप जो है आप इतने वो आजिज़ हो गए थे, यानी कि आप कलाम सुने और कलाम सुनकर कहा कि आप देखिए पहले तो आप तलवार लेकर नौज़ुबिल्लाह अलग ख़्याल से जा रहे थे, मगर आप देखिए जब ये सुना तो आपके जिस्म से ताकत चली गई और आपने कहा कि मुझे जो है मस्जिद नबवी लेके जाइए, मैं अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ और मैं जब ईमान लाना चाहता हूँ। यानी कि देखिए ईमान आएगा तो ही कुरान जो है समझने आएगा। तो मतलब बात क्या है, हर अमल के लिए ईमान सीखना ज़रूरी है। बगैर ईमान के कौन-सा भी अमल अल्लाह ताला के बारगाह में जो है कबूल नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि ईमान सीखना ज़रूरी है। ईमान के बगैर कौन-सा भी अमल कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि ही अल्लाह ताला अल्लाह ताला जो भी अमल करे, यानी कि जो भी अमल करे चाहे मर्द हो या औरत, शर्त हो कि वो मोमिन हो और ज़रूर हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएँगे। यानी कि जो अमल वाले होते हैं उनकी ज़िंदगी पाकीज़ा होती है, उनके दिल में उनकी ज़िंदगी में जो है गलाज़त नहीं होती है, वो पाक होते हैं और जो भी अमल करते हैं सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए करते हैं। अब ये कौन है, किसके लिए बता रहे हैं अल्लाह ताला? मोमिन शख्सियत। मोमिन कौन है? जो ईमान लाते हैं वो मोमिन है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाया, वो लोग पाकीज़ा ज़िंदगी रखते हैं। तो एक वाक़या देखते हैं, एक अल्लाह वाले बताते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला रात को जो है आप बैठे हुए थे। अचानक जो है आप रोने पड़े। तो जब आप रो रहे थे तो आप जो है आपका जो है खिलाफत का दौर का जो है आखिरी साल चल रहे थे, उमर मुबारक के आपके आखिरी साल चल रहे थे। तो आप जो है बहुत रो रहे थे। आपकी अहलिया यानी कि आपकी ज़ौजा, आपकी वाइफ़ ने देखा कि आप बहुत रो रहे हैं, तो आपने क्या किया, अपने बेटे को उठाया और कहा कि ये जाओ आपके वालिद से पूछो कि क्या तकलीफ है, क्यों इतना रो रहे हैं। तो बेटा आया, फिर आपके बेटे आए और आकर कहा कि ये मतलब आपके वालिद से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। फिर आपने फरमाया कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अपने अम्मा को बुलाओ, सब लोग को जमा किया आपने और फरमाया कि यहाँ पे बैठ जाओ और कहा मैं जब मस्जिद से निकला तो मेरे आका के सच्चे सहाबा ने कहा उमर बड़ा ही अच्छा है, उमर तू बड़ा ही अच्छा है, बड़ा इंसाफ वाला है, बड़ा अदल वाला है। तो फिर आपकी बेटे ने कहा, "ए अब्बा जी, तो फिर इसमें आप रोने की क्या बात है?" तो फिर आपने फरमाया, आप जो है दर्द से आपने कहा कि मैं ये मुझे लगता है कि मैं बाहर अच्छा था, मगर घर में तो अच्छा था क्या नहीं? तुम्हारे हुकूक तो अता अता किया या नहीं? फिर आपकी बीवी ने कहा, यानी कि आप जो है देखिए, आप तो एक चीज़ है कि आपके अंदर देखिए जो अल्लाह ताला यहाँ पे कुरान मजीद में क्या फरमा रहे हैं, जो मोमिन औरत यानी कि जो औरत होती है, जो मोमिन औरतें और जो मोमिन मर्द होते हैं, उनकी ज़िंदगी जो वो लोग जो है जो मोमिन होते हैं उनकी ज़िंदगी पाकीज़ ज़िंदगी होती है। तो फिर आप फरमाते हैं कि बाहर तो अच्छा होता था, मैं घर के क्या हुकूक अदा करता था क्या? फिर आपकी बीवी ने इस पर कहा, मेरा बड़ा शिकवा था, आपके जलाल इतना रहने के बावजूद मैं आपसे बोल नहीं सकी। तो फिर इस पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि फरमाते कि क्या बात है? फिर आप फरमाती है कि आप सारा दिन मस्जिद में गुज़ारते थे और रात में मदीने की गलियों में गुज़ारा करते थे आप। मेरा भी था कि कुछ मैं वाइफ़ के हुकूक आप मेरे साथ अदा नहीं किए, बड़ा शिकवा था। आपने कहा चलो अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दे। फिर बीवी ने कहा मैं माफ़ नहीं करती, यानी कि आप फरमाती है कि मैं माफ़ नहीं करती, सिर्फ़ एक ही शर्त पर मैं आपको माफ़ करूँगी, ये कि जब अल्लाह ताला जब आपको क़यामत के दिन जन्नत का हुक्म दे, तो आप सिफ़ारिश करेंगे अल्लाह के बारगाह में कि मेरे सिवा आप जन्नत में नहीं जाएँगे। यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमा रहे, यानी कि अगर अल्लाह उमर को फ़ज़ल और करम महबूब के सदक़े में अगर जन्नत दे, तो मैं उमर
उमर तेरे बगैर जो है जन्नत में नहीं जाएगा। यानी कि अमल करने के लिए समझना है हमें। देखिए अल्लाह के हुक्म को मानना है। तो देखिए यहाँ से हम ये आयत से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो बंदा अल्लाह ताला के लिए जो है अमल करता है, उसकी ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी हो जाती है और उसके साथ जो भी होते हैं वो सब पाक होते हैं। तो देखिए मतलब क्या है, ईमान सीखना ज़रूरी है। बगैर ईमान के अल्लाह ताला कौन-सा भी अमल कबूल नहीं करेगा। तो ईमान सीखना ज़रूरी है। और ये रात जो है, ये रात भी जो है इबादत की रात है। और इबादत भी जो करेंगे वो अल्लाह ताला बगैर ईमान के कबूल नहीं करेगा। तो ईमान सीखना ज़रूरी है। और ये नुज़ूल कुरान की रात है, तो ये रात की हमें जो है बरकतें लुत्फ़ उठाना है, तो हमें ईमान सीखना ज़रूरी है। और हदीस शरीफ में भी हमने देखा कि कोई बंदा अगर ईमान और एहतिसाब के साथ ये रात को पा लेता है, तो उसके तमाम गुनाहों को वो बख्श दिया जाता है। तो हमें ईमान सीखना ज़रूरी है। हर अमल के लिए ये जो है ईमान सीखना ज़रूरी है। और ईमान ईमान के बगैर कौन-सा भी अमल अल्लाह ताला के बारगाह में कबूल नहीं होगा। तो हमें ईमान सीखना ज़रूरी है। और ईमान आने का सिर्फ़ एक ही ज़रिया है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि दिल में तस्दीक करना, ये तस्दीक करेंगे तो ही हम जो है अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन, अल्लाह ताला की उलूहियतपन को हम पा सकेंगे। और हम देख सकेंगे और देखकर जो है डरने वाले बनेंगे और परहेज़ करने वाले बनेंगे और मुत्तकी बनेंगे, तक़वे वाले बनेंगे। तक़वे वाले बनेंगे। तो अल्लाह ताला से मैं आखिरी में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बोलने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।